సభ్యులు సోమవారం సత్యనారాయణ గారు సారీ ప్రోగ్రెస్ చాలా बोला मैंने बोला है डिस्कशन आई विल अलाउ डिस्कशन आई एम रेडी टू अलाउ एट एनी टाइम यू से आप जब कहेंगे उस पर डिस्कशन दे दिया जाएगा मैंने बताया है अगर बोल दिया है पेपर्स आई टोल्ड हिम मैंने कहा है जब बोलेंगे डिस्कशन दे देंगे आप बताइए मुझे यू टेल मी आप जब बोले डिस्कशन दे देंगे गवर्नमेंट इज रेडी yes Honorable Speaker, I have just learned about the notice given by some of the friends from the opposition that they want to discuss about black money. If they want a discussion, government is ready to discuss it under whatever rule you allow it. The government is ready, there is nothing to hide. We have taken a lot of initiatives and we will be happy to take the House into confidence about the steps that have been taken by this government. I urge upon the opposition parties, please cooperate in running the House properly, have a proper debate on such an important issue. If you really want to have debate, the government is ready. Then what is your problem? I am not able to understand. Any time, the government is ready to discuss about ये जो काला धन वापस लाने के विषय में आपने इश्यू उठाया, हम तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, बहस के लिए तैयार है। 10 साल बीत गया, पुराना सरकार के जमाने में कुछ हुआ नहीं, हम आके 6 महीने हो गया, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया हमने, तो हम तैयार है बहस करने के लिए। बहस स्पीकर जब अनुमति दे उस हिसाब से चर्चा के लिए हम तैयार है। प्लीज गो टू योर सीट। आपको चर्चा नहीं चाहिए, खाली चिल्लाना है, धर्मेंद्र जी चाहिए। चर्चा मिलेगी आपको जब आप बोलोगे, हम चर्चा करेंगे। प्लीज सभी लीडर्स के साथ चर्चा करके टाइम तय करेंगे और चर्चा करेंगे इस विषय पे। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री किरण रिजिजू जी। Madam, I beg to lay on the table of the House the papers related to proclamation under Article 356 of the Constitution on behalf of my senior colleague Sri Rajnath Singh. Sri Rajiv Pratap Rudy. Madam, I wish to lay the paper on the table of the House, a copy of each of the following ordinances. The Coal Mine Special Provision Ordinance 2014. And number 2, the Textiles Undertaking Nationalization Laws Amendment and Abolition Ordinance 2014. Sri Kiran Rijizu ji, Madam, with your permission, I on behalf of my colleague Sri Dharmendra Pradhan, Minister of State for Petroleum and Natural Gas, beg to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 5 in today's revised list of business. Sri Kiran Rijizu ji again. Madam, I beg to lay on the table of the House the paper as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Sri Sanjeev Kumar Balia. महोदय, मैं आज की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 7 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। श्री राउत साहब दानवी जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। Madam, I beg to lay on the table 9 bills passed by the Houses of Parliament during the second session of 16th Lok Sabha and assented to by the President. Reports of Public Accounts Committee. Yes. Sri K.V. Thamat ji. Madam, we are submitting the 1,500 Thank you. Bill to be introduced, Dr. Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।
question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक को पूरा स्थापित करता हूं। धन्यवाद। Now 0 hours, please. इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं, आप केवल हल्ला चाहते हैं। ब्लैक मनी पे ना चर्चा चाहते हैं, ना सरकार को सुनना चाहते हैं। इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ जगदम्बिका पाल जी, यस। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आज देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो अवलंबनीय भी है, लोक महत्व का है, और देश में जब ये माननीय जो आज सदन के बेल में है, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वो आंगनबाड़ी की बहनें पूछेंगी कि जिस समय हमारे जैसे महत्वपूर्ण विषय को, कि जो देश के तमाम उस आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वस्थ भारत या स्वच्छ भारत बनाने की परिकल्पना को हम साकार कर रहे हैं, उस समय जब देश की जनता इस बात की अपेक्षा कर रही थी कि निश्चित तौर से 14 लाख केंद्रों पे जो 28 लाख हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती और सहायिका हैं, आज उनके बारे में मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आज उनको हर राज्यों में अलग अलग उनको मानदेय मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 3,000 का मानदेय है, उत्तराखंड में 5,000 का मानदेय है, 7,500 हरियाणा में है। आज देश के उन आंगनबाड़ी की बहनें पल्स पोलियो का काम करती हैं, जनगणना का काम करती हैं, पुष्टाहार बांटने का काम करती हैं, और जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम पे वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जा करके बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, मैटरनिटी एजुकेट करने के लिए जिस तरह का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से हजारों हजार की संख्या में जंतर मंतर पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश की बहनें आकर के बैठी हुई हैं। उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना समीचीन है। अगर देश में आज अन्य तमाम लोगों को आज उनको एक मानदेय जो 10,000 का है वो भी नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं देश के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को वो वास्तविकता के धरातल पे लागू कर। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से पूरे देश के लोग 28 लाख बहनें हमारी हैं जो आंगनबाड़ी की सहायिका और कार्यकर्ती के रूप में हैं। उनको 20-20, 30-30 वर्षों तक प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही, और वो बिना कारण अगर उनके पुष्टाहार को उनको CDPO नहीं बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं मांग करता हूं वो देश की सभी आंगनबाड़ी जो हैं योग्य हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, समय से उनको समर्थन, आपका समर्थन लिखा देना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहा हूं। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में इस समय कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत सरकार की योजना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीदारी की व्यवस्था डिले होने के कारण मूंगफली की फसल के ढेर लग रहे हैं तथा मंडियों के आसपास रहने वाले व्यवसायियों को भी ट्रैफिक जाम के कारण बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान ग्रामीण क्षेत्र से मूंगफली लेकर मंडी में आते हैं, उसको भी समुचित बोली की व्यवस्था नहीं होने के कारण 1 या 2 दिन मंडी के आसपास सड़क पर भी रुकना पड़ता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शहर के अन्य नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मूंगफली की आवक ज्यादा होने के कारण मूंगफली की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रही है, इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री से ये मांग है कि बीकानेर की कृषि मंडियों में मूंगफली की फसल की आवक को देखते हुए अतिशीघ्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीदारी करने के निर्देश जारी करें तथा बजट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं, जिससे राज्य सरकार सरकारी खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुपद रे जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक 5 जून 2009 के मुताबिक 325 होमगार्ड को
एडमिनिस्ट्रेशन को एब्जर्व करने का आदेश दिया गया था। साथ साथ में कहा गया था टाइम बाउंड मैनर के अंदर में उनका जो जो अधिकार मिलना था, बेनिफिट मिलना था, तुरंत दिया जाए। अधिकार क्या क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, ग्रेड पे का 6 पे कमीशन का मुताबिक। दूसरा एसीपी और एमसीपी जो 10 साल का ड्यू था उनको दिया जाए। एचआरए उनका ड्यू था 2010 से उनको दिया जाए। साथ साथ में एडॉक बोनस जो 2010 से उनको दिया जाए, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था 2009 में। एक काम करना था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं पिछले लोकसभा से शुरू करके आज तक करीब 5 बार पत्र लिखा। मैं आग्रह करूंगा 325 होमगार्ड का जो अधिकार है आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, प्रशासन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तुरंत इस कार्रवाई को पूरा करे। गृह मंत्री का नाम पर चिट्ठी का आदान प्रदान ना करे। आदरणीय प्रधानमंत्री का आदेश मुताबिक तुरंत कार्रवाई करके इन गरीब को मदद का पहुंचाए। जय हिंद, भारत माता की जय। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, जब आपकी मांग है, आप अगर ब्लैक मनी पे चर्चा भी चाहते हैं, उसको वापस चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है जानना चाहते हैं, अगर वास्तव में जानना चाहते हैं तो चर्चा करें। चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। मैं फिर से आपको निवेदन करती हूँ, कृपया आपकी सीट पे जाइए। आप जब बोलोगे सरकार चर्चा के लिए जब तैयार है, इसका मतलब आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं। प्लीज 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 गो टू योर सीट। श्री Ahmed ji, you want to raise your point? No? Okay. Shri Ravindra Kumar Jaina. Thank you, Speaker Madam, for giving me an opportunity to raise an issue in which over 20 million farmers in our country depending on betel leaf, which we call Pana Barja in our Odia local language. Over 50 billion revenue get generated from out of this local produce, and about 20 million people in the country, including Odisha coastal belt, West Bengal, Andhra and Tamil Nadu, they suffer. And the pity is that this betel leaf or the Pana Barja has not been considered as a part of the agricultural produce in our country, and there have been consistent demand. The farmers are suffering for hudud, cyclone, and in the coastal belt continuous natural calamities there. So my demand to the agriculture minister is through you, madam, is that let betel leaf or Pana Barja be considered as a part of the betel vines, or the Pana Barja be considered as a part of the agriculture produce, and all the facility including agriculture insurance be extended, by which about 20 million farmers in our country this get the benefit, and cluster be developed in our area in Baleswar, Kendrapada and all the coastal area of Odisha, so that the betel leaf farmer, betel farmer, they get saved. Thank you so much, madam. Dr. Sanjay Jaiswal. महोदय, आपने मुझे गन्ना किसानों की दुर्दशा पर ध्यान आकृष्ट करने का मौका दिया है। आज यहाँ माननीय श्री रामविलास पासवान जी, मंत्री जी भी मौजूद हैं, और इन्होंने यहाँ पे सदन को आश्वासन दिया था कि सभी गन्ना किसानों का भुगतान होगा, और मुझे बहुत खुशी है कि जो भी ईमानदार शुगर फैक्ट्री थे उनको इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और उससे गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। पर मेरे यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 2 फैक्ट्रियां हैं, लौरिया और सुगौली में, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का उपक्रम है और लाखों करोड़ रुपए कमाता है। उसके बावजूद भी लौरिया चीनी मिल और सुगौली चीनी, लौरिया चीनी मिल के 17 करोड़ रुपए बाकी हैं और सुगौली चीनी मिल के 25 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे बाकी हैं। मेरा आपसे निवेदन होगा कि शीघ्र भारत सरकार, माननीय रामविलास पासवान जी, भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को यह आज्ञा दे और किसानों के सारे गन्ना के बकाये को 1 हफ्ते के भीतर इसको पूरा पेमेंट कराएं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भारत सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 0 आवर से बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस विद्यालय की स्थापना देश के विकास के लिए, देश में राष्ट्रीयता की भावना को
बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। काशी हिंदू विद्यालय में छात्र संघ बहाली के लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। सैकड़ों छात्रों को जेल के शिक्षे में डाला गया है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय का वो कीर्ति है और उस विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी बर्बर अत्याचार किया है, जांच करा करके उन पर कार्रवाई किया जाए और निर्दोष सभी छात्रों को जेल से बाहर किया जाए और छात्र संघ की बहाली किया जाए। ये मैं आपके माध्यम से मैं इसकी मांग करता हूँ। कृपाल बालाजी, तुम नहीं थे। धन्यवाद मैडम। आपको चर्चा देने के लिए जब गवर्नमेंट तैयार है, मेरे समझ में नहीं आता है। चर्चा नहीं चाहते, आप चर्चा नहीं चाहते हैं। इंसान को अलग अलग, आप चर्चा नहीं चाहते हैं, देन इट्स ओके। मैडम, इंसान को अलग अलग उम्र में अलग अलग बीमारियां होती है और जिसके निवारण के लिए आज पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है कि हमारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक होवे, लेकिन आज इस देश में देखा जा रहा है कि डॉक्टर लोग कंटेंट के बजाय कंटेंट ना लिखते हुए आज कंपनियों का नाम लिखकर देते हैं, जिससे कंपनियों के नाम से दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती है। आज मैं उदाहरण के तौर पर एक दवाई का नाम बताऊंगा जिसका कंटेंट एटेनॉल है और एक अगर वही कंपनी की दवा अपन अटेन कंपनी की लेते हैं तो एक स्ट्रिप 30 रुपए 10 पैसे की मिलती है और वही कंटेंट की दवा जिब्लॉक कंपनी की लेते हैं तो वो 6 रुपए 25 पैसे की मिलती है। इसका मतलब वही दवा एक कंपनी के बदले दूसरी कंपनी 500 गुना ज्यादा पैसा लेती है। मेरे आपसे द्वारा सरकार से विनंती है कि अगर आपने दवा खाने को, डॉक्टर्स लोगों को एक कंपल्शन करना चाहिए कि उन्होंने कंपनी का नाम लिखकर देते हुए आरएक्स और कितने मिलीग्राम की लेना है ये लिखकर दे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। लोखंडे, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए 3 साल पहले जो भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग का जो जमीन था वो हिंदू मिल का जमीन स्मारक के लिए देने के लिए वंचित किया था, घोषित किया था। अभी तक वहाँ स्मारक का काम नहीं हुआ। एक महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इंटरनेशनल स्मारक मुंबई में होना चाहिए। उसके लिए शासन ने तुरंत वो जमीन है महाराष्ट्र शासन के ओर देना चाहिए और वहाँ स्मारक बनाने का काम तुरंत चालू होना चाहिए। 6 दिसंबर आने वाला है। वो दलितों का महामानव है, ये दलितों पिछड़ों का महामानव है। देश का एक अभी जो आदमी है, जो महामानव है, उनका स्मारक के लिए तुरंत ये शासन करे कि वो जमीन ताबड़तोड़ चालू करके वहाँ स्मारक का काम चालू करे। शासन उसके लिए आदेश करे। Thank you, Honorable Speaker. As all of us are aware that Kumbh Mela is going to take place in July 2015 in my Nasik constituency of Maharashtra state. Kumbh Mela is our country festival. Crores of pilgrims all over the India will going to be participate in this festival.